بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آخر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کیوں دیا گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنے حکومت زمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ کرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسے رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہر دیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دے گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اس نے پانی میں ملا دیا، اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 17 صفر کی رات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیں۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
अम्मी हज़रत फ़ातिमा और वालिद हज़रत अली ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। अब इस मासूम बहन का सिर्फ एक ही सहारा अपने दोनों बड़े भाई हसन और हुसैन थे। लेकिन जब अपने भाई की ज़ुबान से ऐसी बात सुनी तो खुद पर काबू न रख सकी और आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, तुम जाकर मेरे घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हज़रत ज़ैनब पानी भरने चली गई। उस बेचारी बहन को खबर भी नहीं थी कि जिस चीज़ से वो डर रही थी आज वही सब कुछ होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकाला और अपने भाई हज़रत हसन के सामने लाकर रख दिया। ये वही घड़ा था कि जिसमें हज़रत हसन की बीवी ने जहर मिलाया था। अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही वो पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस ना हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक वो पानी अंदर ही अंदर आंतों को काटने लगा और फिर खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। उस जहर के असर से आते कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देख हज़रत ज़ैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि उस जहर ने हज़रत हसन की आंतों के 100 टुकड़े कर दिए और 3 दिनों तक उन्हें खून की उल्टियाँ आती रही। जहर के असर से चेहरा बिल्कुल हरा पड़ गया। उन 3 दिनों में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे कि अगर वो तकलीफ़ें किसी पहाड़ पर भी डाल दी जाती तो शायद वो भी बर्दाश्त ना कर पाता। लेकिन आज कोई मदीने में आकर देख ले कि हुजूर का ये प्यारा सा निवासा कैसे जहर में तड़प रहा है। कुछ लोग थे कि जो हज़रत हसन की ऐसी परेशानी देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीने में नेक लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हज़रत ज़ैनब तो बेचारी अपने बड़े भाई हज़रत हसन को देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर में झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ये अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे। दोस्तों, आज मदीने के एक कच्चे घर में जहर में तड़पता ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते और लोगों से कहते थे कि ये लोगों, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। लेकिन आज मदीने में रसूल की इस नवासे को जहर में ऐसा तड़पाया गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। आते कट कट कर खून की उल्टियाँ होने लगी। हर तरफ कोहराम मचा था, लेकिन शायद अब तकदीर का भी फैसला आ चुका था और अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया था कि ये फरिश्तों, जाकर मेरे जन्नत के फूल हसन को मेरे पास ले आओ। इन जालिम लोगों ने मेरे प्यारे रसूल के बच्चों को बहुत तड़पाया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि घर में बाहर का तो कोई बंदा नहीं आ सकता। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, अपनी ज़ुबान से कुछ ना बताया। यहाँ तक कि जैसे ही उनके छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि भाई जान, आप सिर्फ मुझे एक बार उसका नाम बता दो कि जिसने आपको जहर दिया। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करूँगा। ये सुनकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह खूब बदला लेने वाला है। 3 दिनों बाद आखिर वो दिन भी आया कि जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी वफ़ात बिल्कुल करीब नज़र आने लगी तो अपने छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ और मेरे नानी हज़रत आयशा से पूछो कि आपका नवासा हसन अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या आपकी इजाज़त है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से हज़रत आयशा के घर पहुँचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर
बैठी रो रही थीं। हज़रत हुसैन की ये बात सुनते ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर अपने बड़े भाई हज़रत हसन को ये बात सुनाई तो वो कहने लगे कि ए हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाज़त दे दी है, इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांगना। अगर उस वक्त इजाज़त दे दे तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच मेरा कब्र बनाना। ए हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त आया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हज़रत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों की इस बड़ी तादाद की वजह से ज़मीन पर न गिरती। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने लाकर रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर के कदमों में दफन किया जाएगा तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस जगह दफन ना होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो, मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले। याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब था कि मरवान के लोग और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से सहाबाए कराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे कि ये लोगों, तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर ना पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जंग पर अड़े रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ऐसी हालत देखी तो हज़रत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि ये मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं है कि जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हज़रत फ़ातिमा के ही बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये बात सुनते ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और कहने लगे कि ठीक है, चलो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी के पास कब्र खोदो, आज उसी जगह मेरे भाई हसन को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुँचे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात कोई ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी, बल्कि उसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशिम के औरतों ने एक महीने तक सोग मनाया। बाज़ारें बंद हो गई, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया और हज़रत हसन की वफ़ात का गम ऐसा था कि सभी अपना गम भूल चुके थे। जनाजे के बाद जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी पहुँचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे रो रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।